پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں قانون کی نہیں طاقتور کی بالادستی رہی۔ اس ملک کی اصل جان کسان ہے۔ بہاولپور میں کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ہمارے دور میں محنت کش کسان کے پاس 1100 ارب مزید گیا۔ عمران خان نے کہا، طاقتور شوگر ملز مالکان کسان کو ریٹ سے کم پیسے دیتے تھے۔ کین کمشنر کے ذریعے کسانوں کو پوری قیمت دلوائی۔ وزیر اعظم نے کہا، ریکارڈ پیداوار کے باوجود 40 لاکھ ٹن گندم درآمد کرے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بیرون ملک خوردنی تیل کی قیمتیں بڑھنے پر ہمیں بھی بڑھانی پڑیں۔ آج بھی پانی کی وہی طریقے استعمال کرے ہیں جو موئن میں دھڑوں میں ہوتے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا، تھوڑے سے امیر ہوں اور غریبوں کا سمندر ہو تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما فردوس عاشق اعوان نے گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے اسمبلی میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینے کے معاملے کی اندرونی کہانی بتا دی۔ انہوں نے کہا، چند دن پہلے کاف لیگ کے نائب صدر کے بیٹے کی تحریک انصاف میں شمولیت کروائی، امیدواروں کے طور پر پی پی ارتس کا پارٹی ٹکٹ لے کر دیا اور پھر وہ جیت کر اسمبلی آئے۔ رہنما تحریک انصاف فردوس عاشق اعوان نے کہا، اسمبلی میں داخلے کی اجازت کا استحقاق اسپیکر اسمبلی کا ہے، پرویز الہی کا طرف بڑا ہے۔ میں نہیں سمجھتی چھوٹی سی بات پر کسی کو اسمبلی میں رسائی نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین انٹرنیٹ یا بلوٹوتھ سے لنک نہیں، اس لیے اسے ہیک نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا کو بریفنگ میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق بتایا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں USB لگانے کا سسٹم نہیں ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں بہتر سے بہتر ماہرین کو لائیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو جانچیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ایک ووٹر ایک سے زیادہ بار استعمال نہیں کر سکتا۔ ووٹنگ کے عمل میں 3% یعنی 18 لاکھ ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ شبلی فراز کا مزید کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ کون سی مشین کس حلقے میں جائے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ووٹ کی سیکریسی کا بھرپور خیال رکھا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افغان مسئلے کا حل خطے میں استحکام کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ تمام فریقین کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آرمی چیف نے یہ بات اپنے زیر صدارت ہونے والے کور کمانڈر اجلاس میں کہی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ افغان مسئلے کو حل کرنا تمام فریقین کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان نے مفاہمتی عمل کو کامیاب بنانے کے لیے انتہائی پرخلوص اور سنجیدہ کوششیں کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے میں ہم نے سہولت دی اور ہر ممکن مدد فراہم کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ سوشل میڈیا کے 2 سالہ ڈیٹا سے انکشاف ہوا کہ پاکستان مخالف سارے ٹرینڈز کو پی ٹی ایم نے شروع کیا، اسے بھارت سے سپورٹ مل رہی تھی۔ پی ٹی ایم نے ریاست مخالف 150 ٹرینڈ چلائے۔ اسلام آباد میں مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ان سوشل میڈیا ٹرینڈز کو بھارت نے لیڈ کیا۔ پاکستان میں سب سے بڑے پلیئر پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم اور ان کے ورکرز ہیں۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزاوی نے کراچی کے 3 روزہ دورے کے اختتام پر مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ مزار قائد اعظم پر حاضری کے دوران امارات کے کراچی میں قونصل جنرل بخیت عتیق الرمشی بھی سفیر حماد عبید الزاوی کے ہمراہ تھے۔ حماد عبید الزاوی نے مزار پر حاضری کے دوران دعا کی۔ سفیر نے عظیم رہنما کے زیر استعمال اشیاء کے میوزیم کا دورہ کیا اور مزار قائد کے ہاتھے میں پودا بھی لگایا اور مہمانوں کی یادداشت کی کتاب میں اپنے تاثرات تحریر کیے۔ سفیر حماد عبید الزاوی نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان کا 74واں یوم آزادی مناتے ہوئے ہم عظیم قائد محمد علی جناح اور ان کی جدوجہد اور کارناموں کو احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اس عظیم ملک کی عوام اور قیادت کے لیے اپنے احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس شروع ہو گیا۔ اجلاس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف، محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی، ساجد میر کبیر شاہی، اکرم خان درانی، آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور اویس نورانی شرکت کرے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کورونا میں مبتلا ہونے کے باعث اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئیں۔
नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र से रोक दिया है और कहा है कि नवाज शरीफ को कोरोना वायरस की वबा के सबब अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, उन्हें मजीद एहतियात की ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ को लंदन में अपनी सेहतगाह के करीब ही रहना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ लंदन में ज़ेरे इलाज हैं, जहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उनकी सेहत के बारे में आगाह है। खैरपुर टामे वाली से अख्तर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक भत्ता ना देना जुर्म बन गया, पुलिस इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगी। शहरी के आला हुकाम से कार्रवाई की अपील। हासिलपुर के रिहायशी शहबाज इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैं कारोबारी आदमी हूँ और हासिलपुर में मेरी यूफोन की फ्रेंचाइज है। काफ़ी अरसे से सब इंस्पेक्टर मियां हारून रशीद मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा था। पैसे ना मिलने पर उसने मुझे घर से उठा लिया और किसी नामालूम जगह पर शिफ्ट करते हुए कुछ दिन रखा और तशद्दुद करते रहे। मजीद जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज इस्माइल है, मैं हासिलपुर का रिहायशी हूँ। मेरा ज़ाती कारोबार है यूट्यूब की फ्रेंचाइज। कुछ अर्सा पहले मुझे सब इंस्पेक्टर मियां हारून रशीद IB अपने साथियों समेत मुझे घर से उठा लिया और उन्होंने अननोन जगह पे किसी जगह पे रख दिया और पैसों की डिमांड करते हुए रिटी दायर की, तो मुझे उन्होंने अननोन जगह पे सुनसान जगह पे मुझे वहाँ पे छोड़ दिया बगैर FIR के। अब कुछ अर्सा 6 महीने बाद फिर मियां हारून रशीद सब इंस्पेक्टर IB और अरसलान शाहिद यजमान सिटी ने मेरे घर के रेड की, 4 दीवारी तकद्दुस पामाल किया और मेरी बीवी वगैरह को गाली गलोच वगैरह देते रहे और मुझे उठा के ले गए और 3 से 4 दिन बाद मेरे ऊपर FIR की और वो थाना सिटी हासिलपुर में दी। लेकिन उसकी जो वीडियो जो है वो उन्होंने पहले वायरल कर दी सोशल मीडिया पे ज़िया DSP ने। कोर्ट की मेरे घर का कीमती सामान ले गए। उसके बाद 3 दिन मुझे यजमान सिटी थाने के आसपास अननोन जगह पे रखा। उसके बाद उन्होंने ज़िया ने DSP जो ज़िया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने FIR मुझे बाद में दी और सिटी थाना हासिलपुर में, जबकि मेरा जो एरिया है वो सिटी थाना हासिलपुर बनता है। लेकिन ये यजमान वाले इलीगल तौर पे मुझे वहाँ पे ले गए और हरासा करते रहे, वहाँ पे पैसों की डिमांड करते थे। जब मेरे पैसे वगैरह नहीं दिए फिर मेरे ऊपर पीछे सिटी थाना में FIR हुआ। वज़ीर आज़म पंजाब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट, जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वज़ीर आज़म पंजाब और जनाब IG साहब पंजाब लाहौर और इसके अलावा जनाब डायरेक्टर IB साहब को काफ़ी भेज दी गई है। लाहौर से इमरान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक प्लान फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के तहत ग्रेटर इकबाल पार्क में शजरकारी मुहिम में MPA सादिया सुहेल ने पौधा लगाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अली रशीद इमरान आबिद ने भी पौधा लगाया। चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी ने पौधा लगाया। वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ईशान रशीद ने भी पौधा लगाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माहौलियाती तब्दीली के लिए सबसे ज़्यादा इकदाम किए हैं। MPA सादिया सुहेल शजरकारी किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरी कौम का फरीदा है। PHA की प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम काबिल सताइश है। इंसानी और हैवानी ज़िंदगी की बका और सलामती के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। शहर की अहम शाहराहों चौकों समेत लोगों के घरों में डोर टू डोर पूरे शजरकारी मुहिम जारी है। सऊदी अरब से वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस कल्चर एंड सोशल फोरम रियाज की इंतजामी कमेटी के मेंबरान ने सफ़ीर पाकिस्तान जनाब लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर से उनके दफ्तर में मुलाकात की और उन्हें सफ़ीर पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात के दौरान सिफारत खाना पाकिस्तान में तैनात ट्रेड मिनिस्टर जनाब अजहर ढर और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी नवीद अफजल भी मौजूद रहे। सफ़ीर पाकिस्तान से मुलाकात करने वालों में इंडस फोरम के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा मेमन, फोरम के बानी मेंबर गुलाम कादिर मिला और सीनियर मेंबरान हफीज़ शेख और समीउल्लाह शेख शामिल थे। सफ़ीर पाकिस्तान ने इंडस फोरम के अगराज़ व मकासद के बारे में आगाही हासिल की और फोरम की जानिब से पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने की काविशों और सऊदी अरब में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फोरम की खिदमात को बेहद सराहा और फोरम को आइंदा के प्रोग्रामों के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इंडस फोरम ने जज्बा खैर सगाली के तौर पर सफ़ीर पाकिस्तान को सिंधी अजरक और फूलों के गुलदस्ते का तोहफा भी दिया। शक्करगढ़ से मोहम्मद वकास की रिपोर्ट के मुताबिक शक्करगढ़ ऑल सालाना डिस्ट्रिक्ट सैयद अरशाद हुसैन
7 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शकरगढ़ में मुनाकिद हुआ, जिसकी मेहमान खसूसी चेयरमैन TFA गुलाम रसूल सोनी ऑफ सखोचक, सदर राना रियाज एडवोकेट थे। फूलों के हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। थाना गुजरपुरा मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। थाना गुजरपुरा पुलिस पास खड़ी तमाशाई बनी रही। खबर शामिल करते हैं लाहौर मोहम्मद अजमल जर से हवा की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस पास खड़ी तमाशाई बनी रही। जोजा बुरहान जमील, सबा बुरहान जमील को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुरहान जमील का कहना था कि पुलिस की मौजूदगी में मेरी जोजा सबा जमील को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैंने थाना गुजरपुरा में दरख्वास्त भी दी है, अभी तक मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। उनका मजीद कहना था कि बिलाल दिलावर और दिल, जो कि पंजाब पुलिस का मुलाजिम है, ने डंडों सोटों के साथ मेरी जोजा सबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। बुरहान जमील ने CCPO गुलाम महमूद डोगर और DIG सादिक कयानी से इंसाफ की अपील की है। साहिवाल से हाफिज अली हसन कसूरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा किया। इस मौका पर सीनियर ट्रैफिक वार्डन इंस्पेक्टर सैयद अख्तर, रीडर जुल्फिकार अली, मुहर्रर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट पर ट्रैफिक स्टाफ की भारी नफरी तैनात की जाएगी। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मतलूबा मकामात पर अमले की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। जुलूस के रास्ते से हायर रुकावटों को दूर करने के लिए डाइवर्शन पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने मरकजी इमाम बारगाह, कसरे बतूल से पैदल जिना चौक, लियाकत चौक, करबला रोड, नुमाइशा कब्रिस्तान तक रवायती जुलूस के रूट का तफसीली जायजा लिया और बेहतरी के बारे में हिदायत जारी की। DC लाहौर मुदस्सर रियाज का शादमान में मुहर्रम रूट्स और इमाम बारगाह, कसरे बतूल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अरबाब इब्राहिम, DEO हेल्थ डॉक्टर जाहिद मुनीर और डायरेक्टर वासा अब्दुल लतीफ भी DC लाहौर मुदस्सर रियाज के हमरा थे। लाहौर से आमिर इकबाल भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी इमाम बारगाह कसरे बतूल सैयद हसन अली शाह ने DC लाहौर मुदस्सर रियाज को रूट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। शादमान कॉलोनी में मुहर्रम रूट्स पर इंतजामात का जायजा लिया, रूट्स पर लगी स्ट्रीट लाइट्स का जायजा लिया और कहा कि मुहर्रम उल हराम में SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। कोरोना SOPs का खसूसी ख्याल रखा जाएगा। कोट अदू से राना मोहम्मद सदीक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अदू के इलाके चौक सरवर शहीद सनावा मोड़ MM रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, जिसमें एक औरत एक मर्द शामिल हैं, जबकि एक बुजुर्ग शदीद जख्मी हुआ। शदीद जख्मी की शिनाख्त मोहम्मद कासिम के नाम से हुई, जो कि चक नंबर 508 TDA के रिहाइश था। उन्हें फौरी तौर पर तहसील लेवल अस्पताल चौक सरवर शहीद मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जा रही है। पुलिस थाना चौक सरवर शहीद ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोट अदू से राना मोहम्मद सदीक की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान RPO मोहम्मद फैसल राना मुहर्रम उल हराम के शुरू होते ही सिक्योरिटी इंतजाम की चेकिंग के लिए खुद निकल पड़े। RPO अजला के जारी शुदा सिक्योरिटी प्लान को सामने रखकर एक सिक्योरिटी पॉइंट पर तैनात अफसरान एहलकारों की मौका पर मौजूदगी खुद काउंटर चेक करते रहे। RPO ने कहा कि सिक्योरिटी पॉइंट पर हर ऑफिसर और एहलकार को शेड्यूल्ड प्रोग्रामों के आगाज से 1 घंटा कबल पहुंचकर हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होगी। RPO ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी से सिक्योरिटी इंतजामात का अमली तौर पर जायजा लिया। जिस मुकाम पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा ले रहे थे, वहां पर मौजूद अवाम से बातचीत करते अवाम ने RPO मोहम्मद फैसल राना की तरफ से किए गए मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए उनकी मॉनिटरिंग को प्रोफेशनल पॉलिसी का आईना करार दिया। अबीरा मेडिकल कम्प्लेक्स जमशेर कला में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद। कैंप में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का फ्री चेकअप किया गया। शामी कोट 9 से रिजवान सैफ की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया के नवाही गांव जमशेर कला में कायम अबीरा मेडिकल कम्प्लेक्स में गुज़िश्ता रोज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर नुमान मसूद कम्बोह की सरबराही में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों नादार मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अस्पताल के डायरेक्टर काशिफ सहील और डॉक्टर नुमान मकसूद कम्बोह ने बताया कि हमारा शुआर इंसानी खिदमत को बजा लाना है और इंसानी खिदमत करके दिल को सुकून मैसर आता है। उन्होंने कहा कि इस फ्री मेडिकल कैंप में 10 से ज़ायद मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हजरात ने शिरकत की और सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप करने के अलावा अस्पताल से अद्वियात फराहम की गई। उन्होंने मजीद कहा कि फ्री मेडिकल कैंप लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत है। ऐसे मुस्तहिक अफराद मरीज जो अपना इलाज मुआवजा कराने से कासिर हैं। अरसा 8 साल बाद सब तहसील मंडी सादेगंज में नायब तहसीलदार की तैनात। मंडी सादेगंज सब तहसील मंडी सादेगंज में
अरसा 8 साल के बाद असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद सलीम चिश्ती, DCO बहावलनगर शफकतुल्लाह मुश्ताक और PTI के किंग MPA मियां फिदा हुसैन कालो कावटू की कोशिशों से दफ्तर नायब तहसीलदार फाल हो गया। महकमा माल कामला और नायब तहसीलदार मंडी सादेगंज पहुंच गए, जिससे सब तहसील मंडी सादेगंज की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौका पर आवाम और सिविल सोसाइटी का कहना था कि गुज़िश्ता सालों में हम लोगों को अपने मसाइल के लिए हल के लिए 25 किलोमीटर का सफ़र करके मंचनाबाद जाना पड़ता था। अब नायब तहसीलदार का दफ्तर फाल होने से हमारे तमाम मसाइल का हल यहीं पर ही मुमकिन हो सकेगा, जिसके लिए हम अहलियाने सब तहसील मंडी सादेगंज, JC मंचनाबाद, DCO बहावलनगर और MPA मियां फिदा हुसैन कालो कावटू के इंतहाई मशकूर हैं।